Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। Once again, I greet you all in the matchless name of Lord and Savior Jesus Christ. एक बार फिर से मैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबका अभिवादन करता And it's हूँ। such a joy to bring Word of God once again before all of you. और ये बहुत आनंद की बात है कि एक बार फिर से आप सबके सम्मुख प्रभु का वचन लाने के लिए। We are living in the very crucial time where we are looking around a very pathetic situation of the world. And in this situation, the biblical scholar, the people of God, are trying to find the truth from the Bible. और इस समय में जो महत्वपूर्ण समय है जब हम अपने इस पूरे संसार में चारों ओर देखते हैं, जब खतरनाक समस्या है, तो बाइबल के विद्वान बाइबल के वचनों से उस सत्यता को जो इस समय हो रही है उसके बारे में वर्णन करते हैं। So when we look around the world, और जब हम इस संसार के चारों ओर देखते हैं, we find there have been more than 3 lakhs people who have died in this और coronavirus. हम देखते हैं 3 लाख से अधिक लोग इस कोरोना वायरस के द्वारा मर चुके हैं। But not only because of the coronavirus, there have been lakhs of death. If I start talking about the ratio, you will find there have been so many deaths because of malaria, because of cough, cold, typhoid, people have been dying. और केवल कोरोना ही से नहीं, यदि मैं गणना की बात करूं तो 1 लाख से अधिक लोग जो हैं वो खांसी से, वो जुकाम से, वो मलेरिया से और तरह तरह की बीमारियों से वो मर चुके हैं। Then do we really think that coronavirus is really a very dangerous, a more dangerous virus than any other things? और क्या सचमुच में हम इस बात को सोचते हैं कि जो कोरोना वायरस है वो बहुत ही खतरनाक है हर एक चीज़ से बढ़ करके? Or is it a kind of panic created all over the world where people are dying, even thinking, having fear of the coronavirus? In this way, people are dying. और ये जो महामारी है, क्या लोग जो भय से जिस बात से डर रहे हैं कि कोरोना वायरस आकर के उन्हें इफेक्ट करेगा, उन्हें वो परेशान करेगा, उन्हें मौत की तरफ उतार देगा, क्या ये बात है? More than 44 lakh people have been affected this coronavirus. और 44 लाख से अधिक लोग इस कोरोना वायरस से ग्रसित हो गए। Well, 81% of them are very mild cases, kind of very minor cases where people get recover very soon. और 81% जो इनमें लोग हैं वो बहुत जल्दी इस बीमारी से चंगे हो गए। And 14% of the people are moderate condition, like people are not actually in the very critical situation. और 40% जो लोग हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि वो बहुत ज़्यादा खतरनाक अवस्था में नहीं हैं। But only 5% of the people are in very much critical situation. लेकिन केवल 5% जो लोग हैं वो बहुत ही खतरनाक अवस्था में हैं। So means if we come in the context of coronavirus, we are most likely to recover from this virus. और जब हम कोरोना वायरस की बात करें तो हम इस बात को जानने की आवश्यकता है कि ये कोरोना वायरस जो है बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है। So the biggest virus is not the coronavirus, it is the virus of fear. और जो वायरस है वो सबसे बड़ा जो वायरस है वो कोरोना नहीं, लेकिन सबसे बड़ा वायरस जो है वो भय है। I don't say that coronavirus is not something that we should talk about or we don't need to care about. We need to take precautions what government is suggesting. और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोरोना आपको चोट नहीं पहुँचाएगा या ये वायरस से आपको अपने आप को बचा के नहीं रखना है, परंतु इससे आपको बचा कर रखना है। लेकिन मैं कुछ और बातों को बता रहा हूँ। Whatever the government plan and whatever the suggestion from the government we are getting, we need to obey them because we are bound and we are obligated to understand and to obey the authorities. और जो कुछ भी सरकार की ओर से हमारे लिए नियम और कानून आते हैं, उन नियम और कानून को हमें मानना है और उसके तहत चल करके हमें इसका पालन भी करना Even है। this is what Bible says, that we have to obey the authority. We need to pray for them. और यही जो बाइबल हमें बताती है कि हमें अपने अधिकारी लोगों के लिए प्रार्थना करना है और उनके अनुसार हमें चलना है। So this coronavirus, I said, it is not the virus that is coronavirus most dangerous. It is the virus of fear. और जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कोरोना वायरस नहीं है जो कि सबसे बड़ा भय लाता है, परंतु ये वो वायरस है जो हमें भयभीत करता है, हमारा भय, हमारा डर। And behind the curtain and behind this coronavirus, devil is planning to fulfill his strategies
in this world. और इस पर्दे के पीछे, इस कोरोना वायरस के पीछे शैतान चाहता है कि वो अपनी जो उसने योजना बनाया वो इस संसार में प्रकट करे। So I want to tell you, my dear people, we need to be aware of the strategy of Satan. We need to be aware of the plan of devil so we may stand against of him with the power of Holy Ghost. और मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूँ कि जब शैतान का इस संसार के लिए, इस कोरोना वायरस के पीछे एक योजना है, तो आपको इस समय इस बात को जानना है कि वो योजना क्या है और उसके तहत आपको कार्य करना है। So Satan is hovering over the people in the form of first the fear. और शैतान जो है मनुष्य के ऊपर हावी होता है, सबसे पहले वो भय के साथ हावी होता है। And let me tell you some more points that in this way devil is willing to fulfill his strategies, and we need to obey the plan of God. We need to be under the guidance of Holy Ghost. Then we will be able to fight against this devil. और मैं कुछ आपको बिंदु बताऊंगा, जिन बिंदुओं के अनुसार, जिन बातों के अनुसार आप चल करके इस शैतान के विरोध में लड़ाई कर सकते हैं और उसके इस योजना के तहत आप उसे हरा सकते हैं। See, behind this coronavirus, the fear of this coronavirus, Satan is trying to destroy the sense of togetherness. और जो हमारे जीवनों में इस कोरोना वायरस के साथ जो शैतान चाहता है वो हमारे जीवनों का ये है कि हमारी एकता जो है वो टूट जाए। Satan is willing to destroy the sense of togetherness, the sense and the feeling to be with people. He is willing to destroy this. और शैतान इस कोरोना वायरस के पीछे चाहता है कि मनुष्यों का जो दूसरे मनुष्य के प्रति प्रेम है, सहभागिता है, उनके साथ रहना है, उठना है, सब कुछ खत्म हो जाए। This is what happening all around the world. और ये जो है पूरे संसार में घट रहा है। Now, even in the family, if somebody is prone of coronavirus or affecting having some diseases, even the children are not deciding and they are not going to the older parents of their home. और जैसे हम परिवारों में देखते हैं कि व्यक्ति अपने परिवार में कोरोना वायरस का कितना भय है कि जो बच्चे हैं वो अपने बूढ़े दादा दादियों के पास नहीं जाते, जब बच्चे अपने माता पिता के पास भी नहीं जाते। People are not willing to meet with somebody. They are not having the actual love what they were supposed to have. और लोग जो हैं वो अपने लोगों से नहीं मिल पा रहे हैं और जो प्रेम उन्हें देना चाहिए एक दूसरे को, वो प्रेम नहीं कर पा But रहे let हैं। us read 1 Thessalonians chapter 2 verses 18. और आइए हम पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीके की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसका 18वां पद कुछ इस प्रकार से कहता है, इसलिए हमने अर्थात मुझ पौलुस ने एक बार नहीं वरन 2 बार तुम्हारे पास आना चाहा, परंतु शैतान हमें रोके रहा। See, here we read Paul is willing to visit his people. और यहाँ हम पाते हैं कि पौलुस जो है वो अपने लोगों से मिलने जाना चाहता है। Why? Because before he wanted to communicate, he wanted to solve the questions of the people about the coming of Jesus. क्योंकि वो जो लोग हैं उनके प्रभु यीशु मसीह के आगमन से प्रति जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों का वो उत्तर देना चाहता है। So Satan is stopping Paul to meet with them. तो इसलिए जो शैतान है वो पौलुस को रोकता है कि वो उनसे ना मिले। Today what is happening in this world? और आज के दिन इस दुनिया में, संसार में क्या हो रहा है The coming of Jesus is very near. कि यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है And the word and the gospel of his coming, the gospel of his kingdom has to be preached all over the world. और उसके आने का सुसमाचार, उसके सुसमाचार का प्रचार इस संसार में होना बहुत आवश्यक But है। what is happening? Somewhere Satan is willing to destroy the sense of togetherness. People don't even have time to meet with somebody even in the home. They are not having the quiet time. They are not having the time of prayer. They are not having the time of togetherness. This is what devil is planning और to do. यहीं पर हम देखते हैं कि जब ऐसा समय है तो यहाँ पर शैतान क्या है, लोगों की सहभागिता को तोड़ता है, लोगों को एक साथ नहीं खड़ा होने दे रहा, लोगों को बात नहीं करने दे रहा। और ऐसे में प्रभु का सुसमाचार कैसे फैल सकता है, लोग सुनना नहीं चाहते, किसी के पास नहीं आ जाते। यही शैतान की योजना है। So here, the gospel which has to be preached, it is being actually hindered by the plan of devil. और यहाँ पर जो परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया जाना है उसको जो है शैतान का ये योजना जो है उसे रोकता है। Secondly, Satan is willing us
not to do the will of God. और शैतान जो दूसरी बात है वो चाहता है शैतान कि हम जो है परमेश्वर की इच्छा पूरी ना कर सकें। 1 Thessalonians chapter 3 verses 13. और आइए हम पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीके उसका 3रा अध्याय उसका 13वां पद, ताकि वे तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। Here I said that Satan is willing not to do the will of God. और जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर शैतान चाहता है कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी ना कर सकें। What is doing the will of God? और परमेश्वर की योजना का क्या मतलब है? Doing the will of God is something that we are actually not doing the will of Satan, we are doing the will of God. और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने का मतलब है कि हम शैतान के कामों को नहीं कर रहे, उसकी इच्छा पूरी नहीं कर रहे, परंतु परमेश्वर के कार्य को कर रहे, उसकी इच्छा पूरी कर Doing रहे the will of God is to be obedient with the word of God and obedient to the plan of God. और परमेश्वर की योजना को मानना, परमेश्वर की आज्ञा पर चलना, उसकी इच्छा को मानना मतलब है हम उसके वचन का पालन करें, आज्ञाकारिता में जीवन बिताएं और प्रभु के साथ बने रहें। Obedience is the life that doesn't have any kind of compromise. और ओबीडियंस हमारी जो आज्ञाकारिता का जो जीवन है वो ये है कि हमें किसी भी बात में समझौता नहीं करना It है। is the love-filled life. और ये प्रेम भरा जीवन है It is life of sacrifice. और ये बलिदान का जीवन है। It is the life where we sacrifice our desire. It is the life where we sacrifice what we are actually very much happy to do. We sacrifice those things and we obey God. और यहाँ पर हम परमेश्वर की इच्छा को मानते हैं, हम अपने स्वयं जीवन का इनकार करते हैं और हम जो हैं अपनी इच्छाओं को मारते हैं, उनका बलिदान करते हैं, जो हमें करना है उसे नहीं करते। ये प्रभु की इच्छा Today, है। all over the world, people are willing to save their life. They are not actually willing to do the will of God. और आज के दिन में इस पूरे संसार में लोग अपने जीवन को बचाना चाहते हैं, अपने जीवन को प्रचार करके आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो परमेश्वर के कामों को नहीं करते हैं। What is the will of God in this end time where we are very, very close to the coming of और Jesus? परमेश्वर की इच्छा इस अंत के दिनों में जब हम प्रभु के आगमन के निकट हैं वो क्या है? I have been telling you, God purposefully have closed us down for more than 40 days. We have been sitting in our home. What is the will of God in this time? और परमेश्वर ने ये 40 दिन से अधिक दिन हमें इस जगह पर रखा है। इस कोरोना वायरस के चलते हमको 40 दिन घर पे बंद रख दिया है ताकि हम प्रभु की उस समझ को, उस परमेश्वर के आगमन के बारे में और जानें और समझें। It is a time when we need to hear what God says. It is a time when we need to obey what God says. It is a time to grow more closer to God. और ये वो समय है कि हम जाने परमेश्वर हमसे क्या कहता है, हम जाने परमेश्वर हमसे क्या बात करता है, और ये समय है कि हम और परमेश्वर के करीब चले आए। Oh, but Satan is willing you not to do the will of God. लेकिन शैतान चाहता है कि आप प्रभु की इच्छा को पूरा ना कर सकें। There will be so many time, there will be so many distractions, there will be so many time to compromise, but denying everything and obeying God, it is something we need to do in this end time. समझौता करने के बहुत समय होंगे, हमें अपने जीवन में आगे बढ़ करके अपने कामों को पाना बहुत समय होगा, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा पाना, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना और अपने स्वयं जीवन का इनकार करना जो है उसका एक समय है। Without this sacrificial life, we cannot be Christian at all. और हम बिना बलिदान के हम एक मसीही नहीं कहलाते। What is this sacrifice? Somebody, someday, I am willing to pray, but I am not actually having the desire of prayer. But I am denying food, I am denying whole day of watching mobile and TV, and I am sitting in the presence of God. Is the sacrificial और life. ये सेक का बलिदान करना क्या है, स्वेच्छा का बलिदान करना क्या है? ये वो है जब हम कोई प्रार्थना करना नहीं चाहते, लेकिन उस समय हम पूरा दिन टीवी देखने का इनकार करते हैं, हम अपने मोबाइल को चलाने का इनकार करते हैं और वैसी इच्छा में भी हम प्रभु के चरणों में बैठ करके प्रार्थना करते हैं। ये स्वयं का इनकार It is करना a है। time when we don't feel to read God's word, but I am denying my desire and reading it.
it is the और sacrificial ये life. वो समय है, ये जो है बलिदान का वो समय है कि जब हमारा मन बाइबल पढ़ने का नहीं होता, तब हम उस अपनी इच्छा का इनकार कर करके परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए बैठते हैं। It is what we need to do, the will of God. But Satan in this day is destroying the understanding that we need to do the will of God. और यही इच्छा है परमेश्वर की जो हमें इन दिनों में करनी है, लेकिन शैतान चाहता है कि हम परमेश्वर की इच्छा को ना पूरी करें इन दिनों में, We need to do the will of God. और हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। And third thing which I want to tell is Satan is stopping us to glorify God. और तीसरी बात जो मैं आपसे बताना चाहता हूँ वो ये है कि शैतान चाहता है कि हम परमेश्वर की आज्ञा में ना चल सकें। More than 40 days, it is about to be happening. More than 3 months, we have been sitting in our home. But actually, what we supposed to glorify God, we couldn't do that. और 40 दिन से अधिक दिनों तक हम घर पे बैठे रहे, 3 महीने से ज़्यादा दिन हो गए हम बैठे हैं, लेकिन शैतान नहीं चाहता कि हम परमेश्वर पर और बढ़ें और परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें। We need to glorify God in every और situation. हमें हर एक परिस्थिति में परमेश्वर की महिमा करनी Even in है। the time when we lack different things, even in the time when we are suffering so much, that time also we need to glorify God. और जिस समय में हम बहुत सारी तकलीफ में हों, परेशानी में हों, बीमारी दर्द में हों, उस समय भी हमें परमेश्वर की महिमा करनी Look है। at Paul. He has been glorifying God at every और situation. आप पौलुस की ओर देखें, जिसने हर एक परिस्थिति में, हर एक संकट में परमेश्वर की महिमा को उत्तम But स्थान in this दिया। time, Satan is willing to destroy this. He is stopping this to glorify और God. यहाँ पर इस समय में शैतान जो है वो हमारे कारण, हमारे आगे एक रुकावट बनता है और हमें परमेश्वर की महिमा करने नहीं And देता। what actually Satan is doing, Satan is using our mind, Satan is using our tongue not to glorify God, but glorify other things. और यहाँ पर शैतान क्या कर रहा है, शैतान ने योजना बनाई है, वो हमारी जुबान का इस्तेमाल करता है, हमारे दिमाग का इस्तेमाल करता है और परमेश्वर की महिमा करने से रोकता है और दूसरे कामों में व्यस्त करता है। We need to declare the promises of God at every situation. हमें हर एक परिस्थिति में परमेश्वर के वचनों और वायदों की घोषणा करनी है। Even in the time of suffering, in the time when we are having problem and difficulty, we need to pray, we need to declare the promises of God. और जब हमारे विपत्ति के समय में, परेशानी, संकट, बीमारी के समय में हमें परमेश्वर की महिमा करनी है, उसके वायदे को हमें घोषणा करनी है। See, tongue has power of the life and death. और देखिए जुबान में वो सामर्थ है जो मृत्यु और जीवन दोनों So लाती है। in this time, we need to pronounce, we need to declare life in every home, in every cities, in every town, and all over the world. We need to declare life because your tongue has power to do this. और इस परिस्थिति में हमें अपने हर जगह में, अपनी हर एक परिस्थिति के द्वारा, हर एक शहर में, हर एक गांव में, हर एक पूरे देश भर में जाकर के जीवन की घोषणा करनी, क्योंकि आपकी जुबान में वो सामर्थ्य है। Let me tell you how an anointed person loses his anointing. और मैं बताना चाहता हूँ कैसे एक अभिषिक्त व्यक्ति अपने अभिषेक को खो देता है, Only by using the tongue in wrong way. केवल उसकी जुबान को गलत तरीके से इस्तेमाल करने के द्वारा। If suppose I am anointed and I am speaking something against, even I am rebuking something in the nonsense things, or I am doing something which I suppose not to speak against somebody, in this way I am losing my anointing. और जैसे मैं एक अभिषिक्त दास हूँ और यदि मैं अपनी जुबान को गलत तरीके से किसी को गिराने के लिए, किसी को तरह तरह की बातें बोल करके अगर ऐसा कुछ करता हूँ या परमेश्वर के मार्गों के हिसाब से नहीं चलता, ऐसा कर रहा हूँ, तो मैं अपने अभिषेक को खोता हूँ। So we need to use our tongue only to glorify God, not we don't need to use our tongue to curse others. और इसलिए हमें अपनी जुबान को दूसरे के लिए आशीष मांगने के लिए, जीवन मांगने के लिए इस्तेमाल करनी है, ना कि किसी को श्राप देने के लिए। Today, all over the places, Satan is using the tongues of people to lose their anointing
and to glorify God. In this way, he is stopping them. और आज जो शैतान है वो लोगों को उनकी जुबान को रोकता है कि वो परमेश्वर की महिमा ना कर सके, परमेश्वर की आज्ञा में ना चल सके, उसको आदर ना दे सके, ऐसी योजना से वो रोकता है। He is stopping us not to bless others, rather to curse others. और वो हमें रोकता है कि हम दूसरों को आशीष ना दें परंतु हम उन्हें श्राप दें। If I am a blessed person, I can bless others. और यदि मैं एक आशीषित व्यक्ति हूँ तो मैं दूसरे को आशीष If दूंगा। I have experienced God, I can make other experience God. और यदि मैंने परमेश्वर को महसूस किया है तो मैं दूसरे को परमेश्वर को महसूस करना So बताऊंगा। in this way, we have to glorify God, but Satan is stopping this. We need to understand his strategy. और इस समय में हम जो है परमेश्वर की महिमा करना चाहिए, हमें परमेश्वर को आदर देना चाहिए, लेकिन शैतान जो है वो हमें रोकता है। Behind the curtain, behind this coronavirus, devil is having different strategies. Let us understand this to fight against his और enemy. पर्दे के पीछे और इस कोरोना वायरस के पीछे शैतान की एक योजना है जो वो हमें नाश करना चाहता है, हमें परमेश्वर की महिमा करना नहीं चाहता, रोकता है, उसे हमें तोड़ना है। Let us understand this and let us stand with the power of God's word. Let us stand with the power of Holy Ghost, so we will be victorious at every situation. और इस बात को आप थामे रखें और इस बात को अपने जीवन से लें और परमेश्वर में बढ़ें ताकि हम इस चीज को रोक सकें और प्रभु में आगे बढ़ें। God says, "Fear not, for I am with you." और परमेश्वर कहता है कि तुम भयभीत ना हो, तुम डरो ना, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ। Only He is the Lord who will keep you away from every plan and strategy of devil. केवल वही परमेश्वर है जो हर एक योजना से, हर एक सामर्थ्य से, हर एक बीमारी से आपको बचा सकता है। Satan, whatever his strategy is, if we are actually attacked by those strategies, we will miss the reward, we will miss the very glorious heaven. So I want to encourage you all to look unto the face of God, to obey his commandment, rather not to be attacked by the power of demons. और शैतान की यही इच्छा है, यही योजना है कि हम उसके काम को परमेश्वर के ना कर सके, उस स्वर्ग के राज्य की योग्य ना हो सके। इसलिए आइए हम इस बात को कहें कि हम परमेश्वर में बढ़ेंगे, हम इसकी सारी योजनाओं को तहस नहस कर देंगे। May God bless you by this word. और परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा Let आशीषित us करे। stand together to fight against demon, and let us do the will of God. और एक साथ खड़े हों और शैतान के गणों को हिला दें और परमेश्वर की सामर्थ्य से आगे बढ़ें। God bless you all. Thank you so परमेश्वर much. को आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।